Good morning, everyone. Today we are going to learn the difference between four very common English words: read, go through, study, and learn. We use these words almost every day, but many learners use them incorrectly because they sound similar, right? So, by the end of this lesson, we will know exactly when and how to use each one. Let's start. Let's see the meaning of read. Read means to look at written words and understand them on the surface level. This means when we read, we only understand what the words are saying. We do not analyze it deeply. We just want to know what is written. We are not bothered about everything about it. Right? When we read, when we just want information, हमें बस information चाहिए. We are not we are not focusing it deeply. We may not require to remember it for a longer period of time. Reading is often quick and casual. मतलब पढ़ लिया हो गया, ठीक है. And it may vanish from your memory soon as well, right? Because you're not bothered about remembering it, right? When we use it while reading books, newspapers, messages, articles. Okay, let's see some examples. I read the news every morning. It means you just want information, not deep learning. बहुत ज़्यादा नहीं है, पढ़ा और हो गया. Read the question carefully. मतलब सवाल को समझना है, बस एक बार पढ़ना है, समझना है. I am reading a novel. It means I am reading something for entertainment, not for exam or for later use. तो इससे हम क्या समझे कि read का मतलब होता है देखो और उसका बेसिक मीनिंग समझ जाओ. लुक प्लस अंडरस्टैंड बेसिक मीनिंग. दैट इज ऑल. Let's see few more examples which we use in our day-to-day life as a college goer. Did you read the instructions properly? Sorry, I read your text but forgot to reply. I read his expression and knew he was upset. I read the announcement on the college portal. Have you read the email from the department? I need to read this chapter before tomorrow's lecture. The professor asked us to read 3 research papers. चलिए गो थ्रू के बारे में जान लेते हैं. मीनिंग टू चेक, रिव्यू और एग्जामिन समथिंग केयरफुली. किसी चीज को थोड़ा और ढंग से समझ लेना, पढ़ लेना. द नेक्स्ट लेवल ऑफ रीड, राइट. कब यूज करते हैं इसको हम? जब हम कुछ रिव्यू करना चाहते हैं, कुछ हम डिटेल में जानना चाहते हैं. टू रिव्यू समथिंग, टू चेक इन डिटेल्स और टू मेक श्योर नथिंग इज मिस्ड. तो इन शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? इट इज मोर केयरफुल देन रीड बट नॉट एज डीप एज स्टडी. क्योंकि स्टडी में तो हम किसी चीज को डीपली पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसके प्रिंसिपल को समझते हैं, उसकी थ्योरी, थ्योरम, बहुत सारी चीजों को समझते हैं, उसको स्टडी बोलते हैं. लेकिन ये इतना डीप नहीं होता. ओके, लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. I need to go through my notes before the exam. It means you are checking them carefully. थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहते हैं एक बार फिर से. Did you go through the assignment instructions? It means you are making sure you understood all steps. कि आप पूरी तरह से समझ चुके हैं या नहीं समझे. She went through a tough time. मतलब वो किसी अपने लाइफ के हार्ड फेज से गुजरी है. दिस मीन्स शी एक्सपीरियंस्ड समथिंग डिफिकल्ट. इट इज नॉट रिलेटेड टू रीडिंग बिकॉज इंग्लिश वर्ड्स कैन चेंज इट्स मीनिंग बेस्ड ऑन कंटेक्स्ट एज वेल.
यहां पर वेंट थ्रू का मतलब किसी चीज को पढ़ने से रिलेटेड नहीं है, एक्सपीरियंस करने से रिलेटेड है, राइट। इन शॉर्ट हम गो थ्रू को क्या बोलेंगे, ध्यान से पढ़ना, रीड प्लस चेक केयरफुली, ओके। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमारे कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स अधिकतर यूज करते हैं। आई वेंट थ्रू ऑल द चैप्टर्स बट आई स्टिल हैव डाउट्स। गो थ्रू द लिस्ट ऑफ बुक्स एंड पिक द वंस यू नीड। I went through the lab manual before starting the experiment. She went through a tough time last year, but she handled it well. I am going through my old projects to prepare for the presentation. The teacher went through each question carefully during the class. The principal went through the student reports before the meeting. The teacher asked us to go through the syllabus for next semester. Now the third word is steady. Let's see the meaning. To spend time and effort to understand and remember something deeply. Right? मतलब स्टडी क्या है, एक सीरियस वर्क है जिसमें हम समय देते हैं, ध्यान लगाते हैं और एनर्जी भी लगाते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहे, राइट। और स्टडी हम कब करते हैं, जैसे प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, लर्निंग अ सब्जेक्ट सीरियसली, वांटिंग टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म, राइट, ज़्यादा दिनों तक याद रखने के लिए। तो स्टडी इज नॉट ईजी, राइट, बिकॉज इट रिक्वायर्स अटेंशन, रेगुलर प्रैक्टिस एंड सीरियसनेस, राइट। तो शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, स्टडिंग नीड्स फोकस, टाइम एंड एफर्ट, राइट। और हम कब करते हैं स्टडी, किस जगह पर स्टडी करते हैं, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, लर्निंग अ सब्जेक्ट, practicing a skill or understanding something in deep, okay। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। I need to study for my exam, कब बोलते हैं, when you want to remember and perform well in the exam, right। She studies chemistry, क्यों भाई, क्योंकि केमिस्ट्री उसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो केमिस्ट्री के लिए सीरियस है, इट इज हर सीरियस सब्जेक्ट, राइट। स्टडी द ग्रामर रूल्स, क्यों स्टडी करते हैं ग्रामर रूल्स को, क्योंकि हम उसको समझना चाहते हैं और याद रखना चाहते हैं, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर देम, राइट। तो स्टडी किस प्रोसेस का नाम है, जिसमें हम पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं और उसको याद रखते हैं, राइट। तो स्टडी इज इक्वल टू रीड प्लस अंडरस्टैंड डीपली प्लस रिमेंबर, राइट। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स अक्सर यूज करते हैं। I need to study for my math exam tonight. She studies chemistry at the university. We studied the chapter before the test. The students are studying for their final exams. He studies English vocabulary every day. I studied the map to find the quickest route. We should study the experiment results carefully. The teacher asked us to study the rules of grammar. She stayed up late to study for her history quiz. I am studying this topic to prepare for my presentation. Okay. Let's see the fourth word, learn. Meaning,
To gain knowledge or a skill by studying, practicing or experiencing something. मतलब कि कोई नॉलेज या स्किल्स जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, जिसको हम सिर्फ पढ़ते ही ना हो, अपनी लाइफ में यूज भी कर सकें. ये कोई भी कोर्स हो सकता है, कोई भी हार्ड स्किल्स हो सकती है, कोई भी सॉफ्ट स्किल्स हो सकती है, जस्ट लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, right? Leadership skills. So these skills are acquired by us, right? So एक बार हमने लर्न कर ली, उसको हम जिंदगी में आराम से यूज कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर एक चीज है कि एक बार हमने कोई चीज स्किल्स एक्वायर कर ली, वी डोंट नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन. बार बार जरूरत नहीं पड़ती. इसका मतलब कि वी रिमेंबर इट नेचुरली. ये हमने स्किल गेन कर ली है, राइट? बिकॉज लर्निंग इज द एंड गोल, राइट? इट शोज द सक्सेस इन एजुकेशन और अ कोर्स, वट एवर वी लर्न. सो हम कहां कहां यूज करते हैं इसका? जहां पर हम कोई चीज समझ जाते हैं या कोई नई चीज एक्वायर कर लेते हैं या कोई भी नॉलेज अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं. सो लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ रीडिंग और स्टडिंग. कहां कहां यूज कर सकते हैं हम? वाइल अंडरस्टैंडिंग लेसन्स, एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, रिमेंबरिंग फैक्ट्स और गेनिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस के थ्रू भी तो हम चीजें सीख लेते हैं ना, जानकर समझकर. या कोई भी टेक्निकल काम जिसको हमने पढ़ा नहीं है, बहुत बार हम करते करते सीख जाते हैं. बहुत सारे काम होते हैं आपकी लाइफ में, राइट? तो उसको भी हम देख कर सीख लिया ना, तो लर्न कर लिया उसको. यू डोंट रिक्वायर टू रीड समथिंग और गोइंग थ्रू द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स. स्मॉल स्किल्स कैन बी लर्नड जस्ट बाय प्रैक्टिस, राइट? सो उस जगह पर भी हम लर्न का यूज करेंगे. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. I want to learn English, right? It means gain the skill of English. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, राइट? यहां इंग्लिश सीखना होता है, राइट? और स्किल क्यों यूज हुआ? क्योंकि कोई भी चीज या कोई भी कला जो मार्केट में वैल्यू रखती हो या जिससे पैसे कमा सकते हैं, वो स्किल में गिनी जाती है. ठीक है? स्पोकन इंग्लिश इज अ कम्युनिकेशन स्किल, राइट? I learned a lot from the lecture. मैंने बहुत कुछ सीखा लेक्चर से, राइट? नॉलेज स्टेड विद मी. नॉलेज अब मेरे साथ रहेगी, उसको मैं कभी भी यूज कर सकता हूं. She learned how to play the guitar. मतलब उसने सीख लिया है गिटार, अब वो गिटार बजा सकती है. Now she is skillful, right? She gained a skill. तो हम क्या कहेंगे? लर्न क्या है? लर्न इज द फाइनल रिजल्ट. नॉलेज और स्किल गेन्ड, राइट? Let's see some examples which are generally used by college goers. I want to learn French before my trip to Paris. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूं, नहीं, मैं फ्रेंच सीख लेना चाहता हूं बिफोर माई ट्रिप टू पेरिस. आप समझ रहे हैं डिफरेंस? मतलब वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेना चाहता हूं. स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन दे टेक नोट्स. सी लर्नड how to solve algebra problems. He learned the new software quickly. I learned a lot from yesterday's lecture. They learned to work together on the project. The teacher helped us learn the difficult words. I am learning to play the guitar in my free time. We learned from our mistakes and improved our results.
We are learning about the water cycle in science class. चलिए एक बार फिर से हम इन चारों वर्ड्स को देख लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं. रीड मतलब जस्ट लुक एट वर्ड्स, मतलब इजी एफर्ट. गो थ्रू मतलब चेक केयरफुली, मीडियम एफर्ट. स्टडी मतलब हम किसी चीज को रीड करते हैं, उसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं और रिमेंबर करते हैं ज़्यादा दिनों तक, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है. उस समय हम स्टडी यूज़ करते हैं उसके लिए. और लर्न कम यूज़ करते हैं जब आपका काम कंप्लीट हो गया, आपने कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया, कोई मान लो आपने गिटार सीख लिया है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर आपने सीख लिया है, कोई लैंग्वेज आपने सीख ली है, तो यू गेन्ड द स्किल और नॉलेज, राइट. Let's see all the 4 words in same contexts. You read the chapter quickly. You go through the notes to check important points. You study the chapter for the exam. Finally, you learn the topic. Okay. Thank you, students.